Yes, go ahead. A very good afternoon and a very warm welcome to one and all present in this webinar. And special welcome to our person, Dr. Mrityunjay Pandey, principal from Field Golf Institute of Law, Greater Noida. We also have with us director from Innovative Institute of Law. We also have the coordinator from IGNOU Study Center 39025. All my colleagues from Regional Center Noida, our Senior Regional Director, Dr. Amit Chaturvedi sir, our Additional Director Madam, Dr. Siran Mukherjee, our Additional Director sir, Dr. N. Laskar, all my colleagues from Legal Center Noida, and all the students and other participants present in this meeting. On behalf of Regional Center Noida, I welcome all of you to this webinar. And just a brief background about this program, why we are organizing this program at this point of time. Uh, as we all must be aware that every year we observe Vigilance Awareness Week towards the end of October or the starting of November. इंदू जी म्यूट कर लीजिएगा. Indu ma'am, please mute कर दीजिए. So this year also we will be observing Vigilance Awareness Week from 30th of October to 6th of November. But this time there is an additional development wherein there is a precursor to this Vigilance Awareness Week from 16th of August 2023 to 15th of November 2023, wherein we are organizing various activities. And one of the activities is to organize talks, webinars, awareness programs about this uh, public interest disclosure and protection of informer resolution PIGPI 2004. So about this resolution, what actually this resolution is, what is the correct procedure to file complaint under this resolution, what are the guidelines, and what are the common mistakes that an applicant generally does while filing any complaint under this resolution. So, for knowing about all these aspects, we have with us today with us Dr. Mrityunjay Pandey. Once again, very warm welcome to you, sir, and thank you very much for accepting our request. So, with this brief background, I will hand it over to our Senior Regional Director, sir, to kindly formally initiate so that we may start with the webinar. Thank you very much, sir. Thank you, Dr. Anjana ji. My colleague, Dr. Shiran Mukherjee, Dr. M.A. Laskar, Additional Director of IGNOU Regional Center Noida, the eminent figure, Dr. Mrityunjay Pandey, the principal of the Innovative Institute of the Law, Greater Noida. I welcome to you for the joining of the Vigilance Awareness Week, a webinar, Public Interest Disclosure and Protection of Informal Resolution. एक मिनट प्लीज होल्ड प्लीज. Actually, there is some problem in at my house. My sister-in-law's father is very critical in Gwalior, and she has to rush to the Gwalior railway station, Gwalior, to catch the Rajdhani Express. So that is why I was arranging some vehicle for her. Okay, Mrityunjay Pandey is one of the eminent figure of in the field of the law. Dr. Mrityunjay Pandey has completed his LLB from St. Andrews College of Law, Gorakhpur. Do you know, Dr. Pandey? We have established this study center in St. Andrews College.
when I was the regional Yes, director sir. in No, sir. Varanasi, I visited St. Andrews College, and I met with the principal of the college. And on the basis of the recommendation of the principal, I established the center at the St. Andrews College. It is one of the biggest and one of the good college of Gorakhpur. So he did his LLM from the criminal law and from Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi, postgraduate from the in labor law from the Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur University, Gorakhpur, and completed his PhD from Mewar University, Rajasthan. Mr. Pandey has started his career from the MGK University, Varanasi, as a guest faculty, and he had worked with FIMT School of Law, New Delhi, affiliated to the IP University, New Delhi. He has also worked as a head department of Innovative Institute of Law, Greater Noida, affiliated from CCCS University College, Meerut. Dr. Mrityunjay Pandey also worked as a principal out at St. Wildfields College of the Law, Mumbai, which is affiliated from the University of Mumbai, इसकी Maharashtra. आवाज सुना देना। He has also worked as the Best Teacher Award, Lifetime Achievement Award, and graduation from the St. Wildfields Law College, Mumbai. Currently, he is working as a principal at the Innovative Institute of the Law, Greater Noida. He is one of the eminent figure in the law. He has acted as a supervisor of the seven students under the, and the seven student has worked under his supervision for completion of the PhD, and he worked as a resource person of the various universities of the college. In these words, I once again welcome to Mr. Mrityunjay Pandey for this such a wonderful webinar under the Vigilance Awareness Week 2023. The webinar topic is a public interest disclosure and protection of informer resolution 2004 PIDPI. I once again welcome to you for your lecture, and we will definitely listen your lecture, and the participant of this webinar will be definitely benefited about your uh, suggestions on this topic. Okay, madam. Thank you very much, sir. Now, may I request you, Dr. Pandey, to kindly start with this lecture. Sir, kindly unmute yourself. पांडे सर अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी जी मैम, आवाज अब जा रही पा रही होगी, आप लोग सुन पा रहे हैं आप लोग? जी सर। यस मैम, थैंक यू, बहुत बहुत आभार। आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री नागेश्वर राव जी, कुलपति। सर, आपकी वीडियो स्टिल हो गई है, लगता है कुछ कनेक्टिविटी का इशू है। सर, आप या तो लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन कर लीजिए यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्योंकि वीडियो अभी आपकी स्टिल हो गई है। सर, अपना माइक ऑन कर लीजिए प्लीज, आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, प्लीज माइक ऑन कर लीजिए।
हाँ, आवाज आ रही है? जी जी, अब हम सुन पा रहे हैं। सर फिर से बंद हो गया है। मैम प्लीज। अब हम सुन पा सॉरी रहे हैं। फॉर जी। प्लीज सर। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री नागेश्वर राव जी, कुलपति, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, प्रति कुलपति श्रीकांत महापात्रा जी तथा इग्नू के समस्त पदाधिकारी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस वेबिनार का जो विषय पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर रेजोल्यूशन 2004 के विषय पर चर्चा करने हेतु मुझे अवसर प्रदान किया गया। इसके लिए मैं डायरेक्टर डॉक्टर उमेश चंद्र पांडे जी, सीनियर रीजनल डायरेक्टर नोएडा डॉक्टर अंकित चतुर्वेदी जी तथा नोएडा रीजन के समस्त स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर का आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपने चर्चा का शुरुआत जो सुप्रीम कोर्ट का सुपोर वाक्य है, यतो धर्म तथा जय, जहां धर्म है वहां ही जय होता है, इससे शुरुआत वहीं विजय होता है। यहां से शुरुआत करना चाह रहा हूं। आज की बहुत ही ज्वलंत मामला है भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार स्थानीय स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर तक फैला हुआ है। ये आज का वाक्य बन गया है। ये इतनी बड़ी समस्या है जो हमारे संस्थाओं को, हमारे जो मौलिक संरचना है, देश की ढांचागत विकास को पूर्ण रूप से अवरोध उत्पन्न कर रहा है। और यही नहीं, यह देश के लिए जो आज हम लोग महाशक्ति का सपना दे रहे हैं कि हम भी महाशक्ति, विश्व में महाशक्ति के रूप में भारत को स्थापित करें, यह संभव नहीं है जब तक कि हम भ्रष्टाचार को समाज से समाप्त नहीं करेंगे। 2005 में एक कमीशन था जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक एक संस्था था, जो भ्रष्टाचार के बारे में शोध किया था, अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया था। उसने बताया था कि हर सरकारी कार्यालय में प्रत्येक भारतीयों को, जो जितने भारतीय 62% भारतीयों का काम तभी होता है या तो घूस देते हैं या किसी रसूखदार से पैरवी कराते हैं। अगर ये 62% आ रहा है तो निश्चित रूप से 62 से कम नहीं होगा, ज्यादा ही हो सकता है। और ये चीजें हमें देखने को मिलती है। आज रिश्वत कोई ऐसा काम ही नहीं है कि जो काम आज, ये पहले भी बोला जा चुका है कि आज हर चीज बिकाऊ है अगर हम उसका उचित कीमत दें। इस तरह का पर्याय सुनने पे बहुत ही दुख होता है, और निश्चित रूप से यह देश के लिए, देश के विकास में एक बाधा के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित है। इसको भ्रष्टाचार का अगर नॉर्मल मैं अगर बातें करूं, इसके अलावा 2008 में जो इसके 20 करोड़ के लोग, 20 करोड़ 2008 में लोग सरकारी अधिकारियों को 20 करोड़ रुपए दिए थे। ये लगभग ये डाटा है। तो इतनी एक जो भ्रष्टाचार है एक इंडस्ट्री के रूप में विकास कर रहा है। आप ग्रामीण स्तर से देखिए, प्रधान से लेकर प्रधान का, अब कहता है अगर प्रधान से आप अगर कोई भी पॉलिसी अगर छोटे स्तर पे आ रही 5,000 का, 10,000 का, वो आदमी को मिल ही नहीं रहा है। और प्रारंभ से ये अंग्रेजों के जमाने से ये पर्याय बना हुआ है। आज भी पुलिस स्टेशन जो हमारा बेसिक जो मूल है, पुलिस स्टेशन जहां का उद्देश्य है कि लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स कराएंगे, सच वहीं से शुरू होता है। जिसको अधिकार दे रखे हैं कि भाई आपको करप्शन रोकना है, अगर हम शुरू करें, अगर कोई किसी को बोले कि खाकी वर्दी है तो नॉर्मल, हाँ ये अगर आप एक बार बोले कि ईमानदार भी पुलिस ऑफिसर, ऐसा नहीं कि ईमानदार पुलिस ऑफिसर नहीं है, ईमानदार पुलिस ऑफिसर भी हैं, अच्छे लोग हैं। अगर अच्छे लोग नहीं रहते तो समाज का संचालन हो ही नहीं पाता। लेकिन अगर समाज चल रहा है तो निश्चित रूप से आज भी ईमानदार और बहुत अच्छे लोग हैं जिससे समाज चल रहा है।
लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि एक भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, करप्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे समाज में भ्रष्टाचारियों की संख्या बढ़ चुकी है अच्छे लोगों की तुलना में। यानी अच्छे लोग हैं लेकिन अच्छे लोग कम हैं, भ्रष्टाचारी लोग अच्छे लोगों की तुलना में ज्यादा हैं। ऐसे लोगों को ये जो लोग हैं वो केवल अपने विकास को ध्यान में रखते हैं। उनसे हमें समाज को बचाना है, उनसे हम गरीब लोगों को बचाना है, उनसे हमें नागरिकों को बचाना है, ताकि एक सुदृढ़ समाज का निर्माण हो सके। इस निर्माण में अगर कहीं कोई करप्शन कर रहा है तो उसका हमें विरोध भी करना है, और विरोध ही नहीं करना है, प्रॉपर उचित जगह पे हमें उसकी शिकायत करनी है, उस आदमी को सुधारना है कि फिर से वो करप्शन करते समय बचे। पुलिस स्टेशन में जब अंग्रेज थे, आज भी वही परिवेश की जो भी आ रहा है उसका एक्सप्लॉयटेशन करना है, शोषण करना है। आप न्यायपालिका में जाइए, न्यायपालिका में मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि नहीं होता है, न्यायपालिका में ऐसा नहीं कि जहां हम बात ही करते हैं कि धर्म की रक्षा करनी है, सत्य पे चलना है, सत्यमेव जयते, हर जज का मंत्र है, हर कोर्ट का मंत्र है। लेकिन अगर आप जाइए, जज साहब बैठे हैं, जज नहीं है, तो मुलाकाती के नाम पे विभिन्न रूप में जितना ही हो 10, 20, 50, 200, 400 रुपए लोग ले रहे हैं। अगर आपकी डेट लेनी है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस न्यायालय में नहीं है, ये भी नहीं कह रहा हूं कि हर न्यायालय में है। मैं न्यायालय को आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, न्यायपालिका के मैं विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन यह सत्य वचन है कि न्यायपालिका में भी आप करप्शन घुसी हुई है, न्यायपालिका में भी पैसे ले रहे हैं। प्रशासनिक सेवा, तो प्रशासनिक सेवा में आपको पोस्ट पे जाना है तो वहां पे भी करप्शन है, और ये इसके जिम्मेदार केवल प्रशासनिक अधिकारी ही नहीं है, इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। हमें किसी भी हालत में ना ही घूस लेना है और ना घूस देना है। अगर हम जिस दिन इस बात पे हो गए कि नहीं हमें घूस नहीं लेना है, ना घूस लेना है ना घूस देना है, तो निश्चित रूप से ये क्या होगा, समाज से क्या होगा, ये समाज से समस्याएं दूर होगी। निश्चित रूप से आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, मैम ये स्क्रीन शेयर कर दीजिए, समाज की बात कर रहे हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन इन फार्मर, ये ऐसी व्यवस्था है कि केंद्र स्तर पे, केंद्र जो भी केंद्र शासित, केंद्र के अंतर्गत लोग जो काम कर रहे हैं, उनको हम कैसे उनको भ्रष्टाचार में लिप्त होने से रोकेंगे, उनको कैसे जागृत करेंगे, इसमें विभिन्न तरह का प्रावधान है, और उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक दो समस्या है कि देखिए बहुत से कानून बने कि हम क्या भ्रष्टाचार को रोकेंगे, करप्शन को रोकेंगे, लेकिन ये तभी समाप्त होगा कि हम प्रॉपर उसका शिकायत करें, उसका प्रॉपर अधिकारी को सूचना दें, ताकि वह करप्शन में संलिप्त न रहे। लेकिन समस्या क्या है कि जो करप्शन लोग करते हैं, जो भी करप्शन में इंडल्ज हैं, वो निश्चित से बड़े रसूख के लोग हैं। उनके विरुद्ध अगर आप शिकायत करते हैं तो आपका जीवन खतरे में है। तो ये जो बनाया गया कि हम कैसे इसको बचाएं, कि प्रॉपर लोग डर से, बहुत लोग करप्शन होता है जानते हैं, देखते हैं, लेकिन कभी इस बात को किसी के समक्ष प्रस्तुति नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी जीवन की खतरा है कि छोड़ो भाई करप्शन, अगर करप्शन हम मुक्त बनाएंगे और अपने जीवन से हाथ धो बैठेंगे। और आप मध्य प्रदेश में ऑलरेडी एक बार हम लोग देख चुके हैं कि मध्य प्रदेश में कितने बड़े पैमाने पे कितनी बड़ी विभिन्न तरह की घोटाले, दैट इज द, तो आम ही बात थी। निश्चित रूप से अगर हम लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को इसके बारे में बताएंगे कि लोगों को अवेयर करेंगे, तो निश्चित रूप से इस पे एक बड़ी रुकावट लग सकता है और समाज को हम विकास में भागीदारी बन सकते हैं। ये हमारी ड्यूटी है कि केवल हमारी प्राइवेट
प्रायः हर व्यक्ति की प्राइवेट और पब्लिक ड्यूटी दोनों होती है। हमारी पब्लिक ड्यूटी है कि समाज के लिए हम काम करें, देश के लिए काम करें, और देश का के लिए ये हर व्यक्ति का, हर भारत नागरिक का बहुत बड़ा योगदान होगा अगर समाज में व्याप्त करप्शन को दूर कर सके। लेकिन लोग डरते हैं क्योंकि उनको उनकी जान की खतरा रहती है कि बड़े रसूखदार कभी भी उनकी जान ले सकते हैं। ऐसे में यह जो एक केंद्र सरकार का बहुत बड़ा ये जो कदम था, पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेजोल्यूशन पास किया और इसके प्रति हमें लोगों को अवेयर करना है। इसके लिए हम लोग बातें करेंगे और निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है कि ये बहुत ही हमारे लिए लाभप्रद होगा। सभी जो भी लोग सुनेंगे, समझेंगे, और केवल सुनना ही समझना नहीं है, इसको आत्मसात करना है, अपने व्यवहार में भी लागू करना है। सर्वप्रथम कि जो हम क्या होता है कि बहुत सी, देखिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो अज्ञानता है। अगर हम जिसके बारे में हमें नॉलेज होता ही नहीं है तो अगर बहुत सी हम करप्शन देखते हैं, लेकिन हम करप्शन को कैसे, उसके उपचार कैसे प्राप्त कर सके, तो उसके लिए सबसे पहले कि हम कंप्लेंट कैसे फाइल करें, कैसे काम होता है, कैसे जो इन्फॉर्मर है उसको भी सुरक्षा बरती जाती है। इसके लिए हम लोग बात करेंगे कि कोई भी आपको कंप्लेंट करप्शन के अगेंस्ट अंदर PIDPI कंप्लेंट के अंतर्गत करना है, तो जो हम लेटर लिखते हैं वो जो कंप्लेंट देते हैं टू द सेक्रेटरी, और जो एड्रेस है आप मेरे स्लाइड पे देख रहे होंगे कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सरकार भवन, GPO कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक के INA न्यू दिल्ली, इसका एड्रेस है। कोई भी व्यक्ति अपना कंप्लेंट रिटर्न रूप में इनको दे सकता है। शर्त ये है, ये ध्यान रखना है कि जब भी हम कंप्लेंट देते हैं इस अधिकारी को, तो इनवेलप पे हम अपना नेम और एड्रेस मेंशन नहीं करें। क्यों? क्योंकि जैसे ही नेम और एड्रेस लिख अगर लेटर भेजेंगे तो उससे पता लग जाएगा कि कौन कंप्लेंट है, किसने ये कंप्लेंट किया है और किसके। तो हम प्रारंभ से ये प्रयास करते हैं कि कंप्लेंट का जो नाम है वो डिस्क्लोज न हो, उसके नाम को हम रखते हैं और इस तरह की व्यवस्था बनाई गई। तो उसके बारे में हम लोग प्रोसेस की बात करेंगे कि जो कंप्लेंट है वो हम केवल, पहले जो 2004 में प्रोविजन था कि केवल आप जो कंप्लेंट देंगे वह वाया पोस्ट देंगे और कंप्लेंट के इनवेलप पे आपका नाम नहीं होगा। जो अंदर लेटर लिखते हैं उसमें या तो ऊपर या लेटर के निचले भाग पे अपना नाम आप अंकित कर सकते हैं, अपना पता अंकित कर सकते हैं कि क्या ये कंप्लेंट फेक तो नहीं है, क्या ये सुडो कंप्लेंट तो नहीं है, क्या रियल कंप्लेंट है कि नहीं। इसके लिए ऊपर और नीचे हम लेटर के अंदर लिखते हैं, इनवेलप पे नहीं लिखते। जब लेटर हम पोस्ट करते थे तो एक तो ये कहा गया कि जो भी कंप्लेंट फाइल होगा वो वाया पोस्ट होगा, ताकि अगर ईमेल से भेजेंगे तब भी आप आइडेंटिफाई हो जाएंगे। अगर और कोई पोर्टल से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कैसे भी आप कंप्लेंट देंगे तो आपकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, डिस्क्लोज हो जाएगी। तो हमें क्या करना है कि अपनी सदैव ये भी हमें ध्यान रखना है कि हम अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना ही नहीं है। इसलिए ना ही इनवेलप पे लिखेंगे और ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह हम कंप्लेंट करते हैं, सिंपल बाय पोस्ट हम लेटर को भेजते हैं। इसके बाद से अब ये जो लेटर, इसके अंतर्गत हम कंप्लेंट किसके अगेंस्ट करेंगे, तो ये जो कंप्लेंट होता है वो केवल एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो केंद्र सरकार के जो एम्प्लॉय हैं उन्हीं के विरुद्ध हम इसके तहत कंप्लेंट कर सकते हैं। या कोई भी ऐसा कारपोरेशन एस्टेब्लिश हुआ है जो सेंट्रल एक्ट के तहत, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय या सेंट्रल एक्ट के तहत कोई भी कारपोरेशन एस्टेब्लिश हुआ है उसके विरुद्ध ही हम कंप्लेंट करेंगे। या कोई ऐसी लोकल बॉडी है, सोसाइटी है या अथॉरिटी है जिसका कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था एस्टेब्लिश हो, या कोई कंपनी हो या सोसाइटी हो या लोकल अथॉरिटी हो जिसका कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, उसके विरुद्ध
हम इसके तहत कंप्लेंट करते हैं। कंप्लेंट हमें आपको बताया गया कि लेटर में लिख के आपका नाम निश्चय ऊपर मेंशन करेंगे, एनवेलप पे अपना नाम मेंशन नहीं करेंगे। एक बात ध्यान रखना है कि इसके तहत हम कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है या स्टेट गवर्नमेंट ऐसा भी कोई कारपोरेशन है जो जिसका सुपरविजन या जो मतलब स्टेट गवर्नमेंट जिस पे जुडिक्शन रखता है, या कोई भी ऐसा सोसाइटी लोकल अथॉरिटी जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है, उसके विरुद्ध हम इसके तहत कंप्लेन नहीं कर सकते। तीसरी बात जो है कि हम किसी भी अधिकारी का, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उससे उसका एम्प्लॉयमेंट से, उसके प्रमोशन से, उसके ट्रांसफर से या कोई उसके अपॉइंटमेंट, नौकरी वगैरह रिक्रूटमेंट से संबंधित कोई भी इशू है, उसके अगेंस्ट हम इसके तहत कंप्लेंट नहीं कर सकते, उसके तहत उसका हम कंप्लेंट नहीं करते। यानी नौकरी कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह का एम्प्लॉय वगैरह है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके प्रमोशन वगैरह से, प्रमोशन से, ट्रांसफर से रिलेटेड इशू, हमें उसके अगेंस्ट कंप्लेंट इसके तहत नहीं कर सकते। इस दूसरी जो व्यवस्था बताई कि स्टेट गवर्नमेंट से इसका कोई वास्ता नहीं, केवल इसका वास्ता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेंट्रल एक्ट के तहत कोई भी बॉडी एस्टेब्लिश है या ऐसा लोकल बॉडी जिसका सुपरविजन, कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। अब हम प्रोसीडिंग क्या करते हैं भाई कि हम कैसे, अगर आपने कंप्लेन कर दिया तो इसमें क्या प्रोसीजर है, किस प्रोसीजर को हम अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, तो जो प्रोसीजर है कि जब हम कोई भी कंप्लेन करते हैं तो देखिए जो बॉडी है, कमीशन है, हजारों कंप्लेंट रिसीव करती है, लेकिन उसमें फेक भी कंप्लेंट रहता है, पॉलिटिकल असर, बायसनेस, बहुत तरह के कंप्लेंट होते हैं, सूडो कोई फॉल्स कंप्लेंट भी होता है। लेकिन जब हम लेटर भेजते हैं डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को, और डेजिग्नेटेड जो अथॉरिटी है उसके अथराइज ऑफिसर जो है, जो अथराइज ऑफिसर है उस सेक्शन ऑफिसर से बिलो पोस्ट के नहीं, वो सेक्शन ऑफिसर ही होते हैं। मिनिमम जो छोटा जो सब ऑफिसर होता है वो सेक्शन ऑफिसर, जो ये लेटर रिसीव करता है, ऊपर आपके बारे में कुछ भी नहीं रहता है, लेटर इनवेलप खोलता है, लेकिन लेटर के ऊपर हम लिखते हैं, लेटर के ऊपर हम क्या लिखते हैं, कैसे मालूम होगा कि जो लेटर है वह, जैसे अपना एड्रेस आप लिखते ही नहीं है, किसको भेज रहे हैं उसको लिख रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर जब आप लिखते हैं कि कंप्लेंट, देखिए मैं यहाँ पे स्लाइड आपको दिख रहा होगा, कंप्लेंट अंडर द पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर, ये जो इनवेलप पे जैसे हम ऊपर लिख देते हैं कोई लेटर पे अर्जेंट, वैसे ही इसको बोल्ड मोड में हम लिख देते हैं कि कंप्लेंट अंडर द पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर। जैसे ही ये बातें हम लिख देते हैं उस समझ में आ जाता है कि भाई इसके बारे में, इसको जो लेटर प्रेषित किया है, जो लेटर भेजा है, उसकी आइडेंटिटी हमें डिस्क्लोज नहीं करना है, इसको प्रॉपर रखना है। तो जैसे ही आप कंप्लेंट अंडर पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर और किसको भेज रहे हैं इतना ही लिखना है, नीचे अपना नाम वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं करना है, अंदर लेटर में अपना नाम मेंशन करना है। ये जो लेटर होता है, जब लेटर वहां पहुंच गया अथॉरिटी के पास, तो वहां पे सेक्शन ऑफिसर या जो इंचार्ज हो, जिसको अथराइज किया गया है कि भाई ये आप लेटर आप ही देख सकते हैं, उनके प्रेजेंस में, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के प्रेजेंस में उसको ओपन करते हैं, और वो क्या करते हैं कि जो आपका नीचे एड्रेस वगैरह जो कुछ भी है उसको कंफर्म करते हैं कि क्या ये, वो आप रियल में क्या होता है, उसके कंफर्मेशन करने के पीछे प्रोसेस क्या होता है कि वास्तव में यह रियल आपने जो कंप्लेंट है रियल कंप्लेंट है कि नहीं। जब आप रियल कोई भी कंप्लेंट करते हैं तो रियल कंप्लेंट करते तो उसके साथ साथ आप उसके साथ लेटर भी और भी लगाते हैं कि कुछ एविडेंस कि ये साक्ष्य है जिसके आधार पे मैं कंप्लेंट कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा कि अगर कंप्लेंट के साथ उसमें अगर कोई ऐसा लेटर लिखे हैं जिसमें आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज है तो फिर वो कंप्लेंट डिसमिस कर दिया जाएगा। आपको कंप्लेंट करते समय सदैव ध्यान रखना है कि अपनी आइडेंटिटी आपकी डिस्क्लोज ना हो, केवल एक लेटर पे ही रहेगा, लेटर के अलावा और कहीं भी आपकी आइडेंटिटी मेंशन नहीं होनी चाहिए। जब जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है
कंफर्म कर लेगा कि ये जो कंप्लेंट है अवेलेबल है, सही है। फिर उसको हम क्या करते हैं कि उसके बाद से उनके पास एक रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर में क्या करेंगे, उस रजिस्टर में क्या करेंगे, उसको लेटर को मेंशन कर देंगे, वो लेटर, और एक अपने रैक में उसको सेव करके रख लेते हैं। उसके अलावा जो आपकी आइडेंटिटी रहती है वो क्या करते हैं, उसको रिमूव आउट कर दिया जाता है और एक डमी कंप्लेंट तैयार किया जाता है। डमी कंप्लेंट, आपका कंप्लेंट सेम रहेगा लेकिन जो आपके रियल जो लेटर है उसको छुपा दिया जाएगा, उसको अलग कर दिया जाएगा, और उसका कोई हम एक नंबर असाइन कर देते हैं कि उस नंबर के आधार पे जो आपका सेंट्रल रजिस्ट्री डायरी, उस डायरी नंबर हम दे देते हैं, और इस डायरी के आधार पे हम ओरिजिनल कंप्लेंट को ट्रेस कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल कंप्लेंट क्या है। लेकिन वहां पे जो अथॉरिटी है वो डमी कंप्लेंट तैयार करती है ताकि आपकी आइडेंटिटी ना हो सके कि किसने कंप्लेंट किया। और डमी कंप्लेंट कर को और ओरिजिनल कंप्लेंट को हम क्या करते हैं, अलमीरा में या सेफ में अलग कर देते हैं, और उसकी पहुंच वो काफी सिक्योर प्लेस होता है, ऐसा नहीं कि जो चाहे वो अलमीरा खोल ले, जो चाहे वो उसकी पहुंच से दूर हो जाएगी। ठीक है, अब कंप्लेंट चला गया, कंप्लेंट देख लिया गया, रियल है। फिर अगर कोई आपकी जो आइडेंटिटी, जो इन्फॉर्मर है, अगर उसका कोई आइडेंटिटी होने वाला है उसको रिमूव आउट कर दिया गया, फिर डमी कंप्लेंट तैयार कर दिया गया। ठीक है, डमी कंप्लेंट तैयार होने के बाद से जो ओरिजिनल कंप्लेंट है उसको अलग करके लॉकर में सेव करके रख दिया गया ताकि वो पहुंच, ताकि अब पता ना हो कि कंप्लेंट किसने किया। अब प्रोसीजर क्या होता है कि हम कैसे हैंडलिंग करेंगे कंप्लेंट को अंडर द पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इन्फॉर्मर। जो डमी कंप्लेंट है वो क्या करेंगे कि हम जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है उसको हम सबमिट करेंगे, और ये देखते हैं कि ये जो डेजिग्नेटेड है उसको मैटर को देखता है कि उसके बारे में प्राइमा फेसी देखता है कि क्या ये मैटर है कि नहीं। अगर वो उसको लगता है कि नहीं, अगर जो ये रियल में, एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर वैसा ही जैसे जो मान लीजिए कि मैं गलत हूं, तो गलत हो तो हर आदमी के साथ गलत करता हूं, तो हर आदमी मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट करेगा। तो अगर मान लीजिए कि हमारे अगेंस्ट ऑलरेडी फर्दर हम प्रोसेस कर रखे हैं, किसी मिस्टर एक्स ने दिया लेटर, तो फिर आपके लेटर को हम खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर मुझे लगता है कि नहीं नहीं ये जो कंप्लेंट है नई तरह का है, इसके पहले इस तरह का कोई भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं आया है, इस तरह का कोई कंप्लेंट नहीं आया है, तो उसके लिए हम सेपरेट फाइल ओपन करते हैं, सेपरेट फाइल बनाते हैं, फिर उसकी प्रोसेस हम शुरू करते हैं। और जो भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है, अगर सीरियस कंप्लेंट है तो उसको हम देते हैं। अगर उसके बाद से अगर जो उससे रिलेटेड जो एप्रोप्रिएट, जिसके विरुद्ध ये कंप्लेंट आया है, उसके जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी हैं उनको हम उसके बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, उनके बारे में देखेंगे कि क्या ये है कि नहीं। उस डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी या हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उनको हम बोलेंगे कि भाई इस पे एप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए। अब जब वो एक्शन लेते हैं तो उनको ये कहा गया कि जैसे हम अगर किसी को कोई स्पेशल कोई बॉडी है और किसी के अगेंस्ट कंप्लेंट आया, तो हम एप्रोप्रिएट अथॉरिटी का हमारे पास पूरा मिल गया, हम कहेंगे भाई उनके विरुद्ध आपको क्या करना है कि आप जांच करके और रिपोर्ट बताइए रिपोर्ट। लेकिन ये कहा गया कि अगर जिस अथॉरिटी को देते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा काम होता है, उसको ये नहीं बताते किसने कंप्लेंट किया ये बातें करते हैं। अब वो क्या करते हैं कि ये नहीं कि वो अपना लेटर लेके कंप्लेंट आ गया और लेके हम जवाब ही नहीं दे रखे। कहा गया कि नहीं, आपको विद इन मैक्सिमम 2 वीक के अंदर आपको रिपोर्ट सबमिट करना है। ठीक है, अगर आप 2 वीक में अगर जो जहां का शिकायत वहां का एप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने अगर जो भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी अगर 2 सप्ताह में उसके अगेंस्ट की जो भी कंप्लेंट है उसके अगेंस्ट रिपोर्ट तैयार करके नहीं देता है, तो फिर से 2 वीक और हम देते हैं, यानी टोटल 28 डेज। अगर 28 डेज में भी अगर वो रिपोर्ट नहीं देता है तो हम सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी को कि अभी तक नहीं किया, तो फिर हम क्या करते हैं, सेक्रेटरी अधिकारी को बोल देते हैं कि नहीं देता है। उसके बाद से हम क्या करते हैं भाई कि उसको डायरेक्ट जो भी हम कि वो जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है उसको हम कॉल कर लेते हैं, जो कमीशन है वो कॉल करता है,
कॉल करते हैं कि भाई आपने अभी तक इसके बारे में रिपोर्ट क्यों नहीं दिए, आप जानबूझकर डिले कर रहे हैं, ठीक ना। अगर जानबूझकर डिले कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि यू आर आल्सो इंडल्ज इन द करप्शन, यू आर आल्सो एबेटर, आप भी एबेटर हैं, ठीक है। तो उनको कहा जाता है कि भाई आप 14 दिन में, नहीं 14 दिन में दे देंगे, 14 दूना 28 दिन, 14 दिन के बाद रिमाइंडर, और 14 दिन रिमाइंडर के बाद भी अगर आदमी नहीं आता है तो हम क्या करेंगे भाई साहब, उसको शो कॉज नोटिस कि आओ भाई तू आके शो कॉज की भाई आप क्यों डेलिबरेटली जानबूझकर क्यों डिले कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से जब व्यक्ति आ जाता है, अब वो व्यक्ति आके अपना जवाब दे देता है, या कुछ लोग रिपोर्ट बना के सबमिट ही कर देते हैं। अब जब जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है वो क्या करता है कि रिपोर्ट के लिए इन्वेस्टिगेशन करता है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब जो होता है, छानबीन करता है, वो अपने स्तर पे क्या होगा, देखिए जो कम से कम एसओआई इंचार्ज होगा, जो जिसको हम डेजिग्नेट करेंगे, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को जिसको डेजिग्नेट करेंगे कि रिपोर्ट तैयार करें, इन्वेस्टिगेट करें। और इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है, अन्वेषण, यानी कलेक्शन ऑफ द एविडेंस। अब जो कंप्लेंट हुआ है उससे रिलेटेड जो भी क्या है कंप्लेंट है, क्या कंप्लेंट जो भी उससे रिलेटेड जो भी एविडेंस है उसको एविडेंस को कलेक्ट करेगा, और कलेक्ट करके क्या करेगा, रिपोर्ट बनाएगा। मैक्सिमम दो नॉर्मल टाइम 2 वीक, फिर से हम 2 सप्ताह का और, लेकिन ये है कि 2 सप्ताह में ये कि आपको डिले नहीं करना है। डिले डिफीट द जस्टिस, देरी न्याय से हमें विरोध करता है, तो हमें डिले नहीं करना है। 2 सप्ताह में आप रिपोर्ट बना के, और जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होता है वह क्या करेगा कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को क्या करेगा, वो सबमिट कर देता है। अगर ये होता है कि देखिए 2 चीज है, उसको लगता है कि नहीं कोई हम प्यूनिटिव एक्शन नहीं ले सकते, 2 चीज हो सकता है कि या तो आपको एविडेंस अगर मिलता है तो आप पे फर्दर एक्शन होता है, ठीक है। लेकिन अगर क्या होता है कि सपोज दैट कि आप जो भी लगता है कि नहीं ये इस पे हम एक्शन नहीं ले सकते, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का है, और वो क्या है कि इस पे एक्शन नहीं ले सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे, या तो एक्शन नहीं ले सकते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं कि कम्युनिकेशन, इसमें ध्यान रखना है, कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, बात को खत्म करते हैं। लेकिन अगर बहुत लोग कहते हैं कि अरे कंप्लेंट मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा इसलिए मत करो कि कोई एक्शन ही नहीं होता है, ऐसा नहीं है। आप जो भी बातें कहते हैं और किसी से भी कहते हैं, क्या हम लोग के संज्ञान में कोई बातें आती है तो हम एक्शन नहीं लेते क्या, बातें नहीं करते क्या? जो भी बातें आती हैं निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होती है, और हमें क्या करना है कि लोगों को अवेयर करना है, प्रोत्साहित करना है। ऐसा कभी नहीं कहना है कि नहीं इस पे कुछ नहीं होगा, हम बोलेंगे भाई इस पे काम होगा, लेकिन हो सकता है कि प्रॉपर एविडेंस ना मिला हो, जिसकी वजह से कार्रवाई ना हो। इसके लिए कमीशन कोई भी जो एक्नॉलेजमेंट नहीं देता है, या देखिए ये भी कहा गया है कि जो इन्फॉर्मर है, ठीक ना, जो विसिल ब्लोअर है, विसिल ब्लोअर का मतलब कि भाई सिटी बजाय काम करे कि हाँ यहाँ करप्शन हो रहा है, तो उसको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया जाता है, और उससे ये भी कहा जाता है कि आप फर्दर कोई कोरस्पॉन्डेंस ना करें, ठीक है। अगर वो फर्दर कोरस्पॉन्डेंस कोई करता है तो उससे क्या होगा भाई, उससे क्या होगा कि फिर आइडेंटिटी पता लग जाएगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा व्यक्ति। देखिए जो कंप्लेंट है, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो विजिलेंस, ये जो हम लोग ये जो कंप्लेंट है वो विजिलेंस एंगल के लिए, ये ग्रीवांस रिड्रेसल नहीं है। अगर मैं गलत कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं प्रिंसिपल हूं तो प्रिंसिपल का काम मैं ही करूंगा, लेकिन इसमें क्या है कि विजिलेंस एंगल से क्या होगा कि हम बोलेंगे भाई साहब पांडे सर आप ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कृपया मत करें, आप विजिलेंट हो जाएं, जागरूक हो जाएं, ये संज्ञान में है। अगर आप नहीं मानेंगे तो आपके अगेंस्ट फिर हम, अब जैसे प्रॉपर कोई क्राइम जो भी होता है तो आपके क्रिमिनल प्रोसीडिंग अलग से चलता है। ये ध्यान रखना है कि इसमें विजिलेंस एंगल, और बड़े लोगों के लिए, बड़े अथॉरिटी के लिए
आप किसी के बारे में इतना ही बोल दें कि क्या आप गलत कर रहे हैं, इतना ही बहुत बड़ी पनिशमेंट होती है। तो हमें क्या करना है कि समाज को सुधारना है, व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है और अच्छा करना है, करप्शन मुक्त करना है। देखिए इसमें आपको ये भी कहा गया कि भाई साहब आप पोर्टल वगैरह पे कुछ भी लॉज वगैरह नहीं करेंगे, कि ये सदैव ध्यान रखा जाता है कि जो ये रिड्रेसल नहीं है, ये विजिलेंस एंगल से काम, ये जो व्यवस्था की गई वो विजिलेंस एंगल से काम करता है। तो सदैव हमें ध्यान रखना है कि किसी भी स्तर पे, किसी जांच प्रक्रिया में या किसी भी तरह से उस व्यक्ति की आइडेंटिफिकेशन डिस्क्लोज ना हो। इसलिए अगर कहीं भी करप्शन हो रहा है तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो ऑलरेडी अथॉरिटी ध्यान रखता है कि व्यक्ति को नाम को बचाना है, इसके आइडेंटिफिकेशन छुपा के रखनी है कि इसके अगेंस्ट क्या हो, कोई भी गलत या रॉन्ग एक्टिविटी ना हो सके। तो आप बिंदास कंप्लेंट कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो भी बॉडी काम कर रही है, अगर आपको लग रहा है कि गलत कर रहे हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का एक नोटिफिकेशन है, ये 8 जनवरी 2021 को आया, जिसमें कुछ और भी व्यवस्था की गई है। तो वो मैं चाह रहा हूं कि ये इस चर्चा में ये भी बताना अच्छा रहेगा कि एक तो जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जो ये है, जो रेगुलेशन है 2021, ये कहा गया कि इसमें कोई भी जो आप कंप्लेंट लॉन्च करते हैं, इसमें कोई फीस नहीं होता, कोई फीस नहीं लगता है। और कि एक और बात समझ लीजिए कि जो भी हमें कंप्लेन करना है वो आप हिंदी और इंग्लिश में, कोई ये नहीं कि प्रॉपर फॉर्मेट है, ऐसा है, केवल कोई फीस नहीं लगनी है। और आप उसको क्या करेंगे, हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में, जो आपको लैंग्वेज अच्छा आता है, आप उसको कंप्लेंट को दे सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, जो ये जो 2021 की जो नई गाइडलाइन है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या है कि इसमें जो नई व्यवस्था आई है कि देखिए आज तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया है कि अगर आप कंप्लेन कर, जैसे अभी हम लोग पहले ग्रुप बनाते थे व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो हमारे जितने लोग जुड़ते थे सब हमारा नंबर देख सकते हैं। आज के डेट में ऐसी व्यवस्था आ गई कि आपको कोई नंबर नहीं देगा, आप ही को लोग जानेंगे। तो ऐसे टेक्नोलॉजी भी आ गई है कि जिसके वजह से हम, अगर आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं तो आपको आपके डिटेल को हाइड किया जा सकता है। तो इसमें जो आई है कि अगर कोई भी कंप्लेन करप्शन का लॉस करना है तो रिटन फॉर्म में आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ये जो आपका पोर्टल है, ये पोर्टल है सीबीसी पोर्टल। देखिए नेमली मैं, आप ये स्क्रीन देख रहे होंगे, ये जो ये मैं कह रहा हूँ कि ये देखिए http portalcbc.in, ये आप गूगल सर्च पे भी करेंगे तो मिल जाएगा, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और इसको स्क्रूटनाइज होता है, जैसे आप कंप्लेन करते हैं फिर स्क्रूटनाइज होता है। स्क्रूटनाइज वही होता है कि क्या इसके पहले भी कोई कंप्लेंट हुआ है, क्या इसके पहले, क्या ऐसा नहीं कि जो कंप्लेंट है ऑलरेडी जांच हो रहा है कि नहीं, ठीक ना, उसके बाद हम डायरेक्शन इश्यू कर देते हैं। ये जेन्युइन है तो अगर जेन्युइन तो क्या, फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन मतलब कलेक्शन द एविडेंस। ठीक है, इसके बाद अब इसमें जो नई चेंजेस आई हैं वो ये आई हैं कि हम ऑनलाइन भी कंप्लेंट कर सकते हैं, कोई आपको फीस नहीं देना है। पोर्टल है, पोर्टल पे बात कर सकते हैं। अगर कंप्लेंट करने के बाद अगर कार्रवाई करेगा, अदरवाइज कार्रवाई क्लोज कर देगा, बंद कर देगा, आगे फर्दर करेगा। अब अगर हम कंप्लेंट भी कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अगर लगता है कि नहीं ये जेन्युइन है तो फिर इंक्वायरी के लिए ऑर्डर पास करते हैं। ठीक है, इंक्वायरी के लिए ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। इंक्वायरी ऑर्डर पास कर किया जाएगा, उसके बाद से जो कंसर्न अथॉरिटी है वो रिपोर्ट तैयार करेगा। और जो कंसर्न अथॉरिटी जो रिपोर्ट तैयार करेगा ब्रांच ऑफिसर को देगा कि जो भी ब्रांच ऑफिसर है कि जो कमीशन के पहले एक बार देख के फिर हम कमीशन को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। इसके बाद से
जो तो ये ध्यान रखिएगा कि ये इसके अगेंस्ट कि कोई भी हम क्या होता है कि कंप्लेंट इंटरटेन कमीशन नहीं करता है। जैसे आप कोई भी जो डायरेक्ट अगर कोई भी जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कंप्लेंट कर दिए और कभी क्या होता है कि कहीं ऑलरेडी कहीं कोर्ट में मैटर चल रहा है उससे रिलेटेड, तो फिर आप नहीं कर सकते हैं। जैसे जब भी एविडेंस वगैरह मिल के लगता है कि ये आदमी गलत काम कर रहा है, एविडेंस गलत काम में इंडल्ज है, तो फिर वही जो हमारी क्रिमिनल लॉ की प्रोसीजर उसको हम फॉलो करते हैं और मुकदमा करके काम शुरू करते हैं। तो ये उसके पहले की ये व्यवस्था है कि डिपार्टमेंटल लेवल पे उस आदमी को सुधारा जाए, उसको अवेयर किया जाए और डिपार्टमेंटल लेवल पे जो भी होगा हम एक्शन लें, कार्रवाई करें। तो अगर ऑलरेडी उस पे मैटर चल रहा है तो फिर उससे रिलेटेड इंटरटेन नहीं किया जाएगा। आप किसी भी मैटर को डायरेक्टली हम कमीशन को एड्रेस नहीं कर सकते हैं। अगर आपका जो कंप्लेंट है वो खुद ही कंप्लेंट लग रहा है कि क्या है ऑलरेडी कि नहीं एनॉनिमस है, इस लग ही नहीं रहा कि सही ऐसे फैब्रिकेटेड है, पढ़ के ऐसा लग ही नहीं रहा है, या जो उसका कंटेंट है वो स्पेसिफिक कंटेंट है, ऐसा नहीं कि जैसे वो पता ही नहीं लग रहा है क्या स्पेसिफिक कंटेंट है तो एक्शन हो सकता है। लेकिन अगर वेग है, फॉर्मुलस है, समझ में नहीं आ रहा तो फिर उसको उस आपके कंप्लेंट को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। या ये अगर मान लीजिए कोई ऑलरेडी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है, तो प्रिवेंशन और करप्शन एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है, तब भी आपके कंप्लेंट को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इसके बाद से ऐसे और भी आधार हैं और भी ग्राउंड्स हैं जिसके आधार पे आपके कंप्लेंट को एंटरटेन नहीं किया जाता है। जैसे सब जुडिस सब जुडिस का मतलब है कि कोई भी ट्रिब्यूनल, देखिए जो मैटर है तो ऑलरेडी ट्रिब्यूनल हो या कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो उससे रिलेटेड ऑलरेडी कर रहा है। देखिए ये कहा गया कि किसी व्यक्ति को एक ही काम के लिए दो बार हम उसको पीड़ित नहीं कर सकते। अगर एक जगह कार्रवाई हो रहा है तो एक ही मैटर को आप दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। बीस वैक्सरी बस नॉट एडम काजा, 20 वैक्सरी बस नॉट अन एट एडम काजा, एक ही काम के लिए किसी व्यक्ति को दो बार हम दुखी नहीं कर सकते। ये लॉ की मैक्सिम है। तो इसमें क्या कहा गया कि भाई ऑलरेडी किसी कंपिटेंट कोर्ट के चल रहा है। दूसरी चीज कि अगर किसी प्राइवेट पर्सन का हो, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल का हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, स्टेट लेजिस्लेचर हो, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव या मेंबर ऑफ जुडिशरी या ऑफिशियल ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, अगर उनके विरुद्ध कोई भी कंप्लेंट है तो ये कंप्लेंट को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अगर ये जैसे विच आर नॉट अगेंस्ट द कैटेगरी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, जो सेक्शन 2 और सेक्शन 8 के तहत जो पब्लिक सर्वेंट है, जो पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन में आएगा, उसी के विरुद्ध हम एक्शन लेते हैं। और उसके ये विभिन्न तरह के कुछ ग्राउंड्स हैं जिसमें बताया गया है कि इनके अगेंस्ट आप कंप्लेंट ना करें, अगर कंप्लेंट करेंगे तो इंटरटेन नहीं किया जाएगा। ब्रीफ में आपको फीस उस नहीं लगता है, आपके विरुद्ध आपकी आइडेंटिटी को पूरी छुपा के रखी जाती है। तो हमें सबको अवेयर करना है, जागरूक करना है कि बिंदास आप कंप्लेंट करें अगर आपको गलती लग रही है, लेकिन जनविन। चूंकि देखिए ऑलरेडी आप किस गलत रूप से किसी को पीड़ित कर रहे हैं, ऑलरेडी आपने कोई सूचना दिया और पता लगा कि नहीं तो सूचना गलत है, दैट इज नॉट, क्योंकि वो हमारे बहुमूल्य अथॉरिटी अगर उनको समय दिया तो और अच्छा काम कर सकते। तो समय को भी हमें किसी अधिकारी को, ऑफिसर को गलत काम के लिए परेशान नहीं करना है। ठीक है। अगर देखिए कि अगर कोई भी सबसे पहले कि कौन कौन से प्रोसीजर, इंक्वायरी की प्रोसीजर क्या है, तो नॉमिनल जैसे क्या होता है कि नॉमिनल जो भी प्रोसीजर हम अडॉप्ट करते हैं कि एक तो जैसे ये नहीं है कि अगर कोई कंप्लेंट हो गया तो हम आपको दोषित व्यक्ति ही मान लेंगे, तो दोषित व्यक्ति हम नहीं मानेंगे और प्रॉपर अवेयर करेंगे, प्रॉपर एविडेंस इकट्ठा करेंगे। तो नॉर्मल जो इंक्वायरी की प्रोसीजर होती है उसको हम फुलफिल करते हैं। मैं डिटेल मेंशन किया हूँ, लेकिन टाइम भी हम लोग का काफ़ी, और जो कमीशन है जब इंक्वायरी करती है, तो जब कमीशन इंक्वायरी करती है
तो हम क्या करते हैं कि आप एग्जामिनेशन विटनेस को एग्जामिनेशन के लिए ये है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के सेक्शन 11 और सेक्शन 81 सब सेक्शन डी के तहत हम किसी को गवाही के लिए एग्जामिनेशन के लिए बुला सकते हैं, डॉक्यूमेंट के एग्जामिनेशन के लिए बुला सकते हैं, डॉक्यूमेंट को एग्जामिन कर सकते हैं, उसको अपने बुलाने के लिए जो भी बॉडी है, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, वो सम्मन दे सकता है कि भाई आप आ जाइए, आपको उपस्थित कर सकते हैं, या सम्मन कर सकता है कि आप अपना खुद आ जाइए और डॉक्यूमेंट लेके आ जाइए, ठीक है। या आपसे शो काज नोटिस मांग सकता है कि ये बताइए, हम दे सकते हैं कि भाई इसका आप जवाब दीजिए, ठीक ना। या खुद जाके हम डिस्कवर करने के लिए हम सम्मन इशू कर सकते हैं, ये व्यक्ति जाएगा और उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए सम्मन दे सकता है। ये विभिन्न तरह की बातें, ये कुल बॉडी है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि देखिए कि जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि इसमें तो आप सिंपल आप बात किए कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, लोगों को अवेयर करना है और कि हम करप्शन ना होने दें, ना घूस लें ना घूस दें, और ये विभिन्न तरह की बातें हैं। और ये जो व्यवस्था है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड वास्ता है, बाकी प्रक्रिया आपको बता दी गई। तो इसमें आप एकदम सुरक्षित हैं और आपकी सुरक्षा का ध्यान दिया जाता है। ये जो है ये रेगुलेशन की बात है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि जब हमें भ्रष्टाचार समाप्त तब तक नहीं होगा जब तक हम पैसे की महत्ता देंगे। पैसे की जिस दिन अपनी लाइफ से उसकी महत्ता कम कर देंगे, करप्शन खत्म हो जाएगा। हम हर काम के लिए पैसे, आप पैसे से ही सबका आकलन करते हैं। जिस दिन हम अच्छे लोगों का पूजा करें, ये आदमी अच्छा है, उसी दिन से समाज सुधरने लगेगा। तो ये करप्शन के लिए आप कितना रूल रेगुलेशन जितना भी बना लें, लेकिन ये तब तक समाप्त नहीं। देखिए ये इसको हम कम कर सकते हैं, करप्शन को हम कम कर सकते हैं इस साधन द्वारा। करप्शन को समाप्त तभी कर सकते हैं कि जब व्यक्ति को, जो नए नए स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, और इसमें निश्चित रूप से महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, कॉलेजों, अध्यापकों का निश्चित रूप से बहुत खुशी हो रही है कि कम से कम ऐसे विश्वविद्यालय, इग्नू आज के डेट में ऐसा नामचीन संस्था है कि जिसको कौन नहीं जानता। इसके 67 रीजनल सेंटर हैं, 2667 कंसर्न सपोर्ट सेंटर हैं। इसके अलावा 29 विदेशी मतलब जो इंस्टीट्यूशन है इनके साथ काम कर रहे हैं। तो आजकल तो निश्चित रूप से इतना बड़ा विश्वविद्यालय, विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय, जो निश्चित रूप से बड़ा नेक काम कर रहा है और ऐसे कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, तो निश्चित रूप से बड़ी खुशी हुई है। और जिस दिन हम लोग शिक्षक, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अगर ये चाह लेंगे, शिक्षक, निश्चित रूप से एक सभ्य समाज का निर्माण हो सकता है और करप्शन दूर हो सकता है। इसी वाणी के साथ अपनी बातों का विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद सभी आप सभी को। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने ये पब्लिक एक्सपोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इनफॉर्मल रेजोल्यूशन के बारे में विस्तार से हम सब लोगों को बताया, इसके क्या प्रावधान है, किस तरह से फाइल किया जा सकता है, इसके बारे में बहुत ही अच्छे से आपने हम लोग को समझाया, बहुत ही सरल भाषा में। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं अभी, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यदि कुछ सवाल जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं हमारे रिसोर्स पर्सन से, तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। आशा रानी जी ने हैंड रेज किया हुआ है। आशा रानी जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आशा जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, आपको कोई सवाल है जो आप जानना चाहते हैं? मैं सूचना देना चाह रहा हूँ कि हम लोग इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में, लॉ कॉलेज में से बार काउंसिल का इंस्ट्रक्शन है कि हर जगह फ्री लीगल एड क्लिनिक होगी कि मुफ्त में विधिक सहायता देंगे किसी भी मामले के लिए। लेकिन हमारा इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ ग्रेटर नोएडा में कॉलेज है, नॉलेज वर्स सेकंड में, और निश्चित रूप से इस कॉलेज में एक्टिव लीगल एड क्लिनिक है। अगर किसी को किसी प्रकार का किसी तरह की समस्या है,
तो 9:30 से 5 बजे तक आए, और निश्चित रूप से हम लोग बहुत अच्छे से व्यक्ति का सहायता करेंगे, चाहे वो किसी तरह का विधिक सहायता हो, और वो कोई भी कॉस्ट नहीं होता, और तन्मयता के साथ ये दैट विल बी रियल एग्जिस्टिंग। ये नहीं है कि बहुत से कॉलेजों में ऐसे ऐसे बना दिया गया कि हाँ यहाँ विधि सहायता दिया जाता है, ये होता है, लीगल एड क्लिनिक है, बार काउंसिल आएगा फिर पता नहीं लगेगा कि लीगल एड क्लिनिक कहाँ है। लेकिन इस कॉलेज की और ये है कि यहाँ पे आपको मिलेगा, और उनको सहायता करते हैं। तो किसी को कोई भी दिक्कत हो, आपके सामने आप बताइए, नॉलेज और मेट्रो स्टेशन के बगल में आए, और हम निश्चित रूप से सहायता के लिए तत्पर होंगे, और हमें खुशी होगी कि किसी पीढ़ी का किसी प्रकार का सहायता करके खुशी होगी। तो हम आप लोग के लिए आभारी भी रहेंगे। तो मैम आप लोग भी सबको भी बताएं, ठीक है। धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद कि आप लोगों ने अवसर दिया बोलने के लिए। सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, सर थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर नमस्कार, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आशा जी, आप कुछ जानना चाहते हैं, सवाल है आपका इस पर्सन से? नहीं मैम, थैंक यू सो मच। सवाल नहीं था, सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी। थैंक यू, आपने इनिशिएटिव लिया, इतना अच्छा प्रोग्राम कराया, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और सर, आपने जो ये बताया फ्री लीगल एडवाइस देने के बारे में, निश्चित तौर पर ये बहुत ही सराहनीय है। ये इनिशिएटिव जो इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ का है, बहुत ही सराहनीय है। और अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, और इसी जो आपने बातें कही हैं, इसी में कुछ और ऐड करने के लिए, और साथ ही फॉर्मली आपका थैंक्स करने के लिए, और हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को वो तो थैंक्स प्रेजेंट करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे एडिशनल डायरेक्टर सर डॉक्टर एमी लस्कर। सर, ओवर टू यू प्लीज। नमस्कार, नमस्कार सबको, नमस्कार। सर पंडा सर, एक बात बताइए, एक्चुअली आई वांटेड टू नो, ये जो आप रिजोल्यूशन बोला है, ये रिजोल्यूशन कहाँ से आया? ये रिजोल्यूशन किसने लाया है? और ये एक लीगल डॉक्यूमेंट टाइप है या कुछ ये प्रोसीड्यूरल मैटर्स है? नहीं सर, इसमें लीगल डॉक्यूमेंट है। और देखिए लीगल डॉक्यूमेंट क्या है, कोई एक्ट तो पास नहीं हुआ है। देखिए एक जो सबसे बड़ी समस्या है, रिजोल्यूशन जो कानून एक्ट जो बनाने वाले लोग हैं, ये सत्य बात है। रिजोल्यूशन सर, ये रिजोल्यूशन एक्ट नहीं है, अधिनियम पास नहीं है। और दो चीजें आज भी समस्या है कि एक स्टेट लाइबिलिटी हम फिक्स कर देते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि छोटी सी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, स्टेट लाइबिलिटी के लिए कितनी भी बार लोग कोशिश किए, लेकिन स्टेट लाइबिलिटी फिक्स नहीं होती है। कि जैसे मान लीजिए कि आप हेलमेट नहीं पहने तो आप पे फाइन लगाया जाता है, लेकिन सड़क खराब होता है तो उसके लिए फाइन नहीं लगाया जाता है। बिल्डिंग आपने गलत बनाया, बिल्डिंग आपको आपकी ढहा दी जाती है, लेकिन लोगों ने डिमांड कर रहे हैं जो बिल्डिंग बनवाया, जिसने काम किया, उसको क्यों नहीं पनिश कर रहे हो? तो अगर जिस दिन मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे भी पनिश किया जाए, लेकिन जिसने मुझे गलत करने में सहायता दिया, हेल्प किया, वो आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड में वो भी एबेटमेंट के तहत आता है, वो भी एबेटर है, तो उस पर हम क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? और स्टेट लायबिलिटी जिस दिन फिक्स हो जाएगी, लेकिन दिक्कत क्या है कि जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जज बोला गया कि पैन कार्ड आधार कार्ड जोड़ो भाई, सब लोग को जो खरीदारी करना है कि जब पैन लगाएंगे तो आधार कार्ड भी जानकारी पूरी पूरी मिलेगी। आप हर व्यक्ति को चाहिए कि आप प्रत्येक साल की कितनी इनकम हो रही है, बड़े नोट बंद करो, कैश में काम बंद करो, ठीक ना। ये जो मोदी जी निश्चित रूप से जो भी कदम उठाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी पार्टी विशेष की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये निश्चित रूप से जो वर्तमान सरकार है कुछ हद तक निश्चित रूप से करप्शन को समाप्त करने में सहायक सिद्ध हुआ है, क्योंकि अब डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, विभिन्न तरह की बातें हैं, तो काम हो रहे हैं। लेकिन इसे हमें और तेज गति से लाना है, और तेज गति से सर हम लोग तभी ला सकते हैं कि जब हम खुद एक्टिव बनेंगे, ठीक है। अगर निश्चित रूप से, और हम लोग ये आप लोग सुने होंगे, सहायक सिद्ध होंगे, और आप लोग निश्चित रूप से इनिशिएटिव लेंगे। और एक बार हम लोग को क्रांति करनी पड़ेगी कि जैसे मान लीजिए कि पेंशन, आज भी जैसे पेंशन है सबके लिए बंद किया गया, चलो गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, कॉलेज में टीचर अपॉइंटमेंट करने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, जहाँ 10 टीचर गवर्नमेंट कॉलेज आप देखिए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की कहानी देखिए, लेकिन उनकी सैलरी, नेताओं की सैलरी के लिए 1 मिनट में कोई पता भी नहीं लगता कब एक्ट पास हो गया। तो बड़े बड़े लोग बैठे हैं, पहले इन्हीं से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि प्रभु आप लोग तो देश की भला करें, गरीबों पर रहम करें। आज किसी के पास दरवाजे पे 200 एकड़ का, मतलब 5 एकड़ 15 एकड़ 20 एकड़ में बंगला बना है, बंगलों में रह रहे हैं, लेकिन आज भी भारतीय लोग हैं कि जो बच्चे सड़क पे सो रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी खाई होनी ही नहीं चाहिए।
तो ये अब इससे बड़ा क्या हो सकता है? इससे बड़ा करप्शन का एग्जाम्पल क्या हो रहा है कि बच्चा जन्म ले रहा है, धूप लग जा रहा है बिना एसी का, वो बीमार पड़ जा रहा है, और एक माँ है जो बच्चे को सुला के काम कर रही है। तो ये समाजवादी व्यवस्था है क्या? देश का अभी बहुत ही काम करने हैं और उसके लिए क्रांति की जरूरत है, और क्रांति तभी होगी कि जब हम अपने अधिकारों के प्रति सजग होंगे, और गलत जो कर रहा है उसके प्रति हमें खड़ा होना है तन्मयता के साथ। अगर हम, हो सकता है कि आपका बलिदान हो, लेकिन अगर बलिदान के प्रति आप डरेंगे तो क्या समाज से करप्शन खत्म होगा? क्या? हमें लड़ना है, समाज से करप्शन को समाप्त करना है। और निश्चित रूप से आप लोग सुने, इसका मतलब कहीं ना कहीं इतने लोग जो खड़े हो निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं कि कहीं ना कहीं उनके मन में है कि ये समाज की बहुत बड़ी बीमारी है, देश के विकास में बहुत बड़ा बाधा है, और निश्चित रूप से उसको समाप्त करना चाहिए। तो ऐसे लेक्चर ना कोई आयोजित करता है और ना कोई सुनता है। तो जो आयोजित कर रहे हैं वो तो निश्चित रूप से बहुत ही, उनको मैं निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं, प्रणाम के पात्र हैं। और आप लोग ने सुना इसलिए कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चाह रहे हैं समाज सुदृढ़ हो, कि यू आर द सजग नागरिक हैं। इसके लिए आप लोग धन्यवाद को, आप लोग को मैं प्रणाम करता हूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू, धन्यवाद। और कोई बातें हो? थैंक यू सर, थैंक यू। चलो, इट इज अ वेरी गुड टॉपिक। ये टॉपिक आज जमाना में इम्पोर्टेंट है। जी। बस आपने जो बताया इट इज रियली इम्पोर्टेंट। और मेरा हिसाब से ये जो डिस्क्लोजर इज क्रूशियल। इट इज नॉट ओनली इन्फॉर्मर secrecy, disclosure, compulsory disclosure of information, public information, it is not voluntary disclosure. मेरा हिसाब से that is also very important. वो उसमें हमको ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना जरूरी है। कोई भी इशू पब्लिक में लाना, और इट हैज़ टू बी ए कंपल्सरी प्रोसेस, कंपल्सरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन जो पब्लिक के फायदा में है, सबके लिए है। वो आने से वो जो इन्फॉर्मर है उनको इतना ज़्यादा परेशानी नहीं हो जाएगा। वो भी परेशान बहुत होती है, आप जो बोल रहे हैं, सेक्रेसी रखना पड़ रहा है। तो ये चीज़ हम उसमें ज़्यादा, मुझे लग रहा है ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए डिस्क्लोजर पार्ट में। अदरवाइज इट इज़ वेरी गुड टॉपिक, आपने बहुत अच्छे से बताया सब कुछ। और इसमें जो लोग पार्टिसिपेट किया उनमें बहुत सारे सीनियर लोग भी है, स्टूडेंट भी है, हमारा सेंटर का भी स्टाफ से लोग भी है, और इधर उधर काम करने वाला लोग भी है, बहुत सारे लोग। बहुत सारी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने जो बताया उनको कुछ फायदा होगा मुझे लग रहा है। देखिए, ये करप्शन को तो हमको दूर भगाना है, जरूरी है बिल्कुल। और वो एक इंडिविजुअल से शुरू होती है। इंडिविजुअल प्लेज ए क्रूशियल रोल। और ये चीज नॉट ओनली कंप्लेन, विदाउट कंप्लेन ऑल्सो हम कुछ नया अलग तरीका से उसको कम करने का कोशिश कर सकते हैं। देखिए, हमको एनुअल ऑडिट रिपोर्ट, ये जो इम्पोर्टेंट चीज रिलेटेड टू फाइनेंशियल मनी मैटर्स, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जब लाना शुरू कर देंगे, एक्टिविटी को जब मॉनिटर करेंगे, रिपोर्ट जब ऑडिट करेंगे, उस चीज़ में बहुत सारी असर पड़ता है। और उसमें हमको भागीदारी करना जरूरी है, और हमको एक पॉजिटिव माइंड अप्रोच लेकर चलना जरूरी है। और आपने जो बताया सर, आपने उसमें भी बहुत सारी इम्पोर्टेंट बात जो आपने बताया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। आप नोएडा के लिए, RC नोएडा के लिए आपने टाइम दिया है, इट इज़ गुड। और आप फ्यूचर में भी आप टाइम देंगे, हमको उम्मीद है। और हम मिलजुल के जो भी है हम कोशिश करेंगे, हम मदद करेंगे एक दूसरे को, जो भी कुछ करना आगे बढ़ना है। और जो लोग इसमें ज्वाइन किया है, सीनियर लोग, जो भी फैकल्टी लोग, स्टाफ लोग जो भी है, इग्नू का स्टडी सेंटर का, इग्नू का रीजनल सेंटर का है, और स्टूडेंट। डॉक्टर लश्कर जी सर। आशा रानी हैज रेज्ड हैंड। मृत्युंजय जी, प्लीज एक्सप्लेन। आशा रानी जी, प्लीज स्पीक। आशा रानी, do you want to say something? Actually, she has been. There was no any question. Actually, she raising the hand for some time. I feel. You have raised the hand. बहुत पहले से हाथ रख दिया उन्होंने, डाउन नहीं किया उन्होंने, एक्चुअली रह गया। Yes. So it was good, and thanks to
our senior regional directors, Thank you so Mr. much. Rajana, or all our senior colleagues here, all the staffs of the RC Noida, और ऐसा प्रोग्राम हम फ्यूचर में भी करते रहेंगे और ये एक अच्छा होगा हमारे लिए सबके लिए. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you very much. Thanks to everyone. Thank you, Lecturer. Thanks to everyone. थैंक यू सबको, थैंक यू, धन्यवाद, शुभकामनाएं. थैंक यू.